वो जीवित है सदा, मेरा यीशु जीवित है, वो जीवित है सदा, वो जीवित है सदा, मेरा यीशु जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है। वो जीवित है सदा, मेरा यीशु जीवित है, वो जीवित है सदा, वो जीवित है सदा, मेरा यीशु जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है। Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, hallelujah. My Jesus is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, He is alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, hallelujah. My Jesus is alive. वो जीवित है सदा, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया सदा, वो जीवित है सदा, मेरा यीशु जीवित है। गाएं हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है सदा। गाएं हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है। उसने दाक्र सुट्टेरुंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे मुआ पाया, यरीहो के किनारे मुआ पाया। उसने दाक्र सुट्टेरुंडेला, वो यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। उससे पा लिया, यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाक्र सुट्टेरुंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अत्मुआ पाया, यरीहो के किनारे अत्मुआ पाया। उसने दाक्र सुट्टेरुंडेला, मेरा यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। For he poured in the oil, for he poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. He saw me bleeding, dying, and the Jericho road, and he poured in the oil and the wine. My Jesus, 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 I
I've got him on my mind. I got Jesus on my Yeshu, Yeshu. Oh, Yeshu, Yeshu, Yeshu. मैंने उससे पा लिया। Yeshu, Yeshu, Yeshu. मैंने उससे पा लिया। Yeshu, Yeshu, Yeshu. मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा। What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before, angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before, angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Our Lord God, our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee, no, no. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult. Our Lord God, our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult, nothing is too difficult for thee. Oh, no, no, nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Say, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. और इस बार जब हम कह रहे हैं कि नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर दी, प्रभु तेरे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। और जब हम बोलते कोई भी चीज नहीं, मतलब उसमें आप जिस चीज को भी कठिन समझते हो सब उसमें आ गई, वो कुछ भी उसके लिए कठिन नहीं है। आ लॉर्ड गॉड, हम फिर से गाएंगे। और जब हम कहेंगे नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर दी, अपनी समस्याओं के लिए भी कहेंगे तेरे लिए ये कठिन नहीं है। मैं इसमें से पार होकर एक नई शुरुआत को देखने पाऊंगा। Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Say nothing is too difficult for thee, no, 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 nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing is too difficult for thee. Oh no, nothing is too difficult for thee. Nothing is too, oh nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Oh, मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ,
महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया। तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम। उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। हम गा रहे हैं भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। हम किस बलिदान की बात कर रहे हैं? क्या हम जो दान और भेंट देते हैं उसकी? नहीं। दाऊद राजा होकर उसने बहुत भेड़ों का, उन दिनों में बैलों का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। वो राजा था, उसके पास हजारों की संख्या में वो सब थी और वो हर पर्व में उसको चढ़ाता था। लेकिन एक बार जब वो पाप में गिरा और जो प्रभु के सामने वो टूटा, रोया, बिखरा, पिस गया, और तब उसने परमेश्वर के बहुत खास अनुग्रह को अपने जीवन में पाया। और इसलिए बोलता है, लॉर्ड आई नो दैट यू विल नेवर डिस्पाइज अ ब्रोकन एंड अ कंट्राइट हार्ट। तो कभी भी एक टूटे और पिसे मन को इनकार नहीं करता है। बलिदान भी एक बार कैन का इनकार हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ मन और पिसा हुआ मन परमेश्वर कभी भी इनकार नहीं करता है। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया। तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम। उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। शून्य से लेके तुमने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से। थैंक यू लॉर्ड। दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा तन से लिया उसने। थैंक यू लॉर्ड। कूड़े खाके क्रूस उठा के, माय लॉर्ड थैंक यू जीसस। मुझको मुक्ति चंगाई
जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा कर। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार मार्वलस Lord, your love, the स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र सभी आशीष मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। धन्यवाद प्रभु। अन्न वस्त्र और सभी आशीष मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आगे पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खाकर क्रूस उठाकर ईश्वर मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरे मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति सर्वदा। प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। खुदा बाबा बाबा Oh, wonderful Jesus, जिस नाम में जंग आई है, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में जंग आई है, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु खोरे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। यीशु नाम, we may stand in our places। की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम,
नाम में बरकत है, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में बरकत है, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन प्रभु मुझे अपने मान में करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
प्रभु हम एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप वायदों के सच्चे और पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु, और आप हमारे मध्य में हैं प्रभु, और आपने अपनी कलीसिया की भक्ति को, आराधना को स्वीकार किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारा राजा है, तो हमारे प्राण का रखवाला है प्रभु, तो हमारा उद्धार करता है प्रभु। तेरे ही कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए। धन्यवाद देते पिता, कलीसिया को, पूरी सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे दासों को सौंपते हैं प्रभु। होने दे तेरे आत्मा के द्वारा मस्सा कर अपने दासों को, और पिता परमेश्वर और अपने कलीसिया को आशीष दे। एक एक वचन जो बोया जाता तेरे सामर्थ्य के द्वारा पिता बोया जाए। अपने दास को अभिषेक कर, ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद देते, सारी महिमा आदर आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Good to be here this morning. आज सुबह के समय स्थान पे होना आनंद की बात है। Are you truly happy? Amen. क्या हम To be in सचमुच God's आनंदित house? है कि हम प्रभु के घर में आए हैं? Amen. आमेन। And continue to pray for those who are sick. जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। Pray for Mrs. Topo. मिसेस टोपो के लिए प्रार्थना करेंगे। Few more chemos have to go, about 2 more. 2 और कीमोथेरेपी से उन्हें गुजरना है, And she gets very weak after that. और कीमो के पश्चात उन्हें काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है। And pray for Ajeshwar's mother. भाई आगेश्वर की माँ के लिए भी प्रार्थना करेंगे। Nothing happens to her with all the chemos. वो इतनी, प्रभु ने उनको सामर्थ्य दी है कि तमाम कीमों से भी उनको कोई दुर्बलता नहीं होती है। I talked to her yesterday. कल मैंने उनसे बात किया। It's very clear voice and she's saying, continue to pray for me. बड़ी साफ आवाज़ में उन्होंने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। Pastor Subhash Kinkar is back in Bilaspur. पास्टर सुभाष किनकर बिलासपुर शहर आ गए हैं। And please don't visit without giving them a call. Give them a call. और यदि आप उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं तो बिना उनको फ़ोन किए कृपया ना जाएं, Because so many people will go there and cause some infection maybe. क्योंकि बड़ी संख्या में यदि लोग वहाँ पर जाएंगे तो इन्फेक्शन का वहाँ पर बात रहती है। So he returned back and he was admitted in hospital here in Bilaspur. वहाँ से रायपुर से वापस आने के बाद बिलासपुर में फिर से उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। But this afternoon he is being discharged. लेकिन आज दोपहर को वो अस्पताल से निकलकर छूटकर घर वापस आ जाएंगे। Amen. So continue to pray and help. उनके लिए प्रार्थना और साथ में आर्थिक मदद भी आप उनकी कर सकते हैं। We have put in our WhatsApp group that it's not forced on anybody, but if you wish to help one more time, और व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात को डाला गया था कि किसी प्रकार से आपके ऊपर में दबाव नहीं है, परंतु आप स्वेच्छा से यदि आप मदद करने के लिए इच्छुक हैं so तो you जरूर could, करें। you could put it in the box at the back. वहाँ पर पीछे के दरवाजे के पास में एक बॉक्स रखा है, उसमें आप अपना योगदान So डाल that सकते we will know this is for him. हैं, ताकि हमको पता चले कि इस बक्से में डाला गया राशि पास्टर सुभाष की आर्थिक मदद के लिए है। Bible says, बाइबल कहती है, when I was sick, you did not visit me. जब मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने नहीं आए, When I was in prison, you did not come there. और जब मैं कैद में था तुम मुझे देखने नहीं आए, When I was hungry, जब मैं भूखा था you never came. तो तुमने मुझे नहीं खिलाया। And the ones asked Jesus, when Lord, when did this happen? और उन लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु ये बात कब हुआ? And Jesus said, when you did not do the least of my brethren. और यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जो तुमने मेरे
छोटे से छोटों के साथ, भाइयों के साथ जो नहीं किया, you did not do it for me. वो मेरे साथ नहीं किया। A cup of cold water एक प्याला ठंडा पानी भी यदि मेरे नाम से to a thirsty soul, एक प्यासे हृदय को तुमने यदि पिलाया you है, will not lose your reward. तो तुम अपने प्रतिफल को कभी खोगे नहीं। Amen. आमीन। What you give today, आज आप जो देते हैं, the Bible says, बाइबल कहती है bless the poor. जो कंगाल हैं उनकी मदद करो। Psalm 40, I think it is. भजन मेरे ख्याल से 40 में लिखा है, And he says, when you are sick, God will make your bed for you. तब जब तू उस दशा से गुजरेगा तब प्रभु तेरे लिए आराम का बिछौना तैयार करेगा। What we sow, we reap. हम जो चीज को बोते हैं वही हम काटते हैं। Shall we pray for them right now? आइए इसी समय इन तमाम बीमारों के लिए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, in the matchless, wonderful name of Jesus, हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के अतुल्य और सामर्थी नाम में you have given us the privilege to come into your presence आपने हमको इस सौभाग्य दिया है आपकी उपस्थिति में आने का and to pray for one another. और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का। And this morning as a church we pray और आज सुबह कलीसिया होने के नाते हम मांगते हैं for the suffering ones, O God, इन प्रभु जो दर्द और पीड़ा में जो लोग हैं उनके लिए, that you will touch and heal them all. कि तू उन सबों को छुए और चंगा कर Thank दे। you for what you have done up till now. अब तक तूने जो बड़े और महान काम किए हैं उसके We लिए हम pray तेरा that you will धन्यवाद। finish the work of healing, Lord. प्रार्थना करते चंगाई का काम जो तूने उनके जीवन में किया है उसको संपूर्ण और पूर्ण कर दे। That everyone will come back with a testimony और इनमें से एक एक जन पूर्ण चंगाई के साथ लौट कर गवाही दे, that will bring glory and honor to your name. और वो गवाही तेरे पवित्र नाम को महिमा देने पाए। Very specially we pray for Pastor Subhash. बहुत खास तौर से तेरे दास पास्टर सुभाष के लिए प्रार्थना करते हैं। Cause a miracle to happen upon उनके his body. जिंदगी में एक चमत्कार को होने दे प्रभु। Restore him back all that he has lost. जो कुछ भी उन्होंने खोया है वो सब कुछ प्रभु ने वापस Let लौटा strength prevail, be put into his body, Lord. वो सामर्थ उनके ऊपर प्रबल हो और वापस उनके शरीर को प्रदान किया Let जाए। it be so with Mrs. Topo also. और हम प्रार्थना करते हैं मिसेस टोपो के लिए भी, And also for Ajishwar's mother. और भाई आगेश्वर की माँ के लिए भी, And all those who are suffering, O और God. हर एक ऐसे लोग जो कि दर्द और पीड़ा और बीमारी में हैं। Those who have gone through grief, we pray that you would comfort them. प्रभु जो लोग बीते दिनों दुख से होकर गुजरे उनके लिए प्रार्थना May the करते हैं। peace of God abide in their house, we pray. परमेश्वर की शांति उनके घरों में वास करे। We pray, God, that your anointing will be upon us unabated, I pray. परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरा अभिषेक हमारे ऊपर निरंतर बहता रहे। Bless your word to our hearts. आज सुबह अपने पवित्र कलाम को आशीष दे हमारे हृदयों के लिए। In the name of Jesus we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. And everybody says, आमीन। Amen. Amen. Shall we turn our Bibles to the book of Proverbs, the 22nd chapter? आइए हम नीति वचन की किताब और उसका 22 अध्याय देखेंगे। Proverbs, the 22nd chapter, नीति वचन 22 अध्याय, first verse. पहली आयत। A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor than silver and gold. बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। Ecclesiastes, first 7th chapter, सभोपदेशक 7वां अध्याय, first verse. पहली आयत। A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। It says a good name is rather to be chosen than great riches. वो कहता है भजन संहिता में बड़े धन से, Proverbs, नीति वचन. नीति वचन में बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। Hindi is good. हिंदी में अच्छा लिखा है,
चाहने योग्य है. चाहने योग्य है. And in English it says to be chosen. और इंग्लिश में लिखा है चुनने के योग्य है. Usually nobody chooses their name. सामान्य तौर पर कोई भी अपना नाम को चयन या चुनता नहीं है. But every person who is born in this world परंतु हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है somehow gets a name. उसे कोई ना कोई एक नाम मिल जाता है. It is either given by his parents or near and dear ones. कुछ नाम लोगों को उनके माता पिता या उनके प्रिय लोग रखते हैं, Or some relations give them. या उनका नाम किसी रिश्तेदार के आधार पे उनका रखा गया है. Some parents name their children by much prayer and much thought. कुछ माता पिता अत्यधिक प्रार्थना के साथ में नाम को रखते हैं, And others very carelessly give name to their children. और इस दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही लापरवाही के साथ में नामकरण कर देते हैं. Always find the meaning of the name. हमेशा जो भी नाम आप बच्चों का रख रहे हैं उस नाम का अर्थ जरूर ढूंढ कर निकालें. Because they're going to carry that name all through their life. क्योंकि याद रखें वो नाम वो बच्चा या बच्ची जिंदगी भर लेकर चलेगी. One person came one time एक व्यक्ति एक बार आए and he said, I am going to name my child और कहा मैं अपने बच्चे का नाम सोचा हूं Nimrod. निम्रोद रखूंगा. He was pastor. और वो पास्टर थे. So I asked him, how come you came to this name? मैंने उससे पूछा कि ये नाम तुमने क्यों सोचा. Because he was a great hunter before God. क्योंकि लिखा है निम्रोद परमेश्वर के सामने एक बड़ा वीर था. Now this pastor was a pastor in the jungle. और ये जो व्यक्ति कह रहे थे वो जंगली इलाकों में प्रभु की सेवा करने वाले एक मासूम पास्टर थे. So poor fellow, he thought, let him become a hunter. उनको लगा कि शायद एक शिकार करने वाला एक ऐसा वीर ये नाम मेरे बेटे के लिए अच्छा रहेगा. But he was not a good man. लेकिन निम्रोद इतिहास में एक अच्छे व्यक्ति का नाम नहीं था. Sometimes we give names very carelessly without knowing it, and that child takes the brand upon him. और कई बार हम ऐसा नाम बिना सोचे समझे माता पिता लोग दे देते हैं और वो बालक या बच्ची उस नाम को लेकर जिंदगी भर चलते हैं. Throughout the life, जीवन भर some names are given by others. कुछ नाम दूसरे लोग देते हैं. So why name is so important? फिर काहे के लिए नाम इतना महत्वपूर्ण है. What is in a name? एक नाम में क्या रखा है. Lot of story books are written like that. और बहुत सी किताबें लिखी गई है इसी शीर्षक में. What is in a name? एक नाम में क्या रखा है. A name of the person, और व्यक्ति का कोई भी नाम हो it reflects certain things about him. वो उसके बारे में उस नाम के बारे में कुछ चीज प्रतिबिंबित करता है. Are you here? क्या आप सुन रहे हैं. Because this is not very interesting, like. क्योंकि शायद ये बहुत रोचक चीज नहीं बता रहा हूं. But we are coming to the point. लेकिन हम रोचक चीज की तरफ आ रहे हैं. We could identify the name. With the name we could identify a person somehow, some little bit. किसी नाम से उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं. Even different countries have got different kind of names. और अलग अलग देशों में भी अलग अलग प्रकार के नामकरण किए जाते हैं. So when the name is mentioned, इसलिए जब कभी भी नाम का उल्लेख होता है, so you begin to understand the person's maybe country or his tribe or his religion. तो आप उस व्यक्ति का देश या उसकी जाति या उसके धर्म के बारे में भी आपको पता चल जाता है. Amen. आमेन. Bestovich is German name. और बेस्टविच एक जर्मन नाम है. All right. Anything ending with that. और कोई भी ऐसे अंत होने वाले नाम सामान्य तौर पर जर्मनी में पाए गए थे. So we call some Christian names. हम कुछ मसीही नाम को भी सुनते हैं. So when we say your name is John,
यदि हम कहते हैं कि आपका नाम जॉन है, so we know that that person must be a Christian. तो लोग सुन के जान जाते हैं कि ये व्यक्ति क्रिश्चियन होगा। And you know the names of the Muslims. और आप जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय में किस प्रकार के नामकरण होते हैं, So you know that. और आप इसे जानते हैं। And certain of our religious, categories are also comes to the name. और कुछ धार्मिक वर्ग भी उसी नाम के आधार पे ही उस नाम से उसका पहचान हो जाता है। When we say about Singh, यदि सिंह ऐसा कहते हैं, so we know maybe Sardar is there. और हम जान जाते पंजाबी। हैं सामान्य तौर पर सिंह पंजाबियों को में हमें मिल जाता Or है, maybe Thakur. या फिर ठाकुरों में भी सिंह मिल जाता है। So we come to know certain things about from the name. तो किसी भी व्यक्ति के नाम के आधार पे हम उसकी कुछ पहचान कर सकते हैं। And among the tribes they have different kind of names. और जनजातियों के बीच में भी उनका अपना एक नामकरण का तरीका है, It is carried on from one generation to another जो generation. उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उसका पालन करते आए हैं। Some names have named people are named because of the profession. कुछ नाम लोगों को उनके व्यवसाय के कारण जो वे कर रहे थे उनको मिल गया। Mostly people, the Parsis in India, और भारत में जो बहुत से पारसी लोगों को हम देखते हैं, they have the names of the profession. उनका व्यवसाय के आधार पे लोग उनको नाम दे दिया और उनका नाम हो गया। Watchmaker, और वॉच मेकर, engineer, इंजीनियर, merchant, मर्चेंट, ये सब उनके सरनेम हैं। bottle wala, bottle wala. बोतल वाला, See, these are names given to them. ऐसे ऐसे नाम उन लोगों के बीच में आपको मिलता है उस व्यवसाय के कारण। Similarly, उसी प्रकार से others in foreign country, विदेशों में भी यदि आप देखें तो वहां पर भी Mr. Baker, मिस्टर बेकर, Mr. Smith, मिस्टर स्मिथ, and these are the names of the profession. ये सब एक कारोबार के आधार पे मिला हुआ नाम है। Some names are given by people because of their lifestyle. कुछ नाम लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन शैली के आधार पे दिया गया। Some are good, some are bad. कुछ अच्छा नामकरण, कुछ खराब नामकरण। So he says good name has to be chosen. वो कहता है कि अच्छा नाम चाहने योग्य है। What do people think about you behind your back? लोग आपके बारे में, आपके पीछे क्या विचार रखते हैं? Not in front. Everybody talks very good. सामने नहीं, क्योंकि सामने सभी लोग अच्छी बात करते हैं। He is a thorough gentleman. क्या ये कहते हैं कि ये एक बड़ा सज्जन पुरुष है? She is a gracious woman. वो बहुत ही उस लड़की में अनुग्रह है। He is a simpleton. वो व्यक्ति बहुत ही साधारण व्यक्ति He is a है। humble man. वो व्यक्ति बड़ा ही नम्र व्यक्ति है। These are the good ones. ये कुछ अच्छे नामकरण लोगों के द्वारा किए जाते And the हैं। other ones? और कुछ दूसरे, Oh, this big talk is coming. और बड़ा बातचीत को लेकर वो करते हैं। बड़ा बात Ding मारने वाला. डींग मारने वाला है, वो आ रहा है। He is a troublemaker. वो देखो संकट उत्पन्न करने वाला, Boaster. घमंडी, Loud mouth. और ऊंचा बोलने वाला, बड़ी बात बोलने वाला। These are the kinds of names people give. ऐसे ऐसे नाम भी लोग, दुनिया किसी किसी को दे देती है। A life well lived एक जिंदगी जो अच्छी तरह से जिया गया है, will attest to your name. वो आपके नाम को प्रमाणित करता है। Your life will speak good about your name. आपका जीवन आपके नाम को अच्छा प्रस्तुत करता है। People will recognize लोग पहचानेंगे you and me as a good person. मुझको और आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। If you want to live a good life, यदि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते 1 हैं, Peter 3rd chapter, पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय में 10th verse says, 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, He that will love life जो कोई जीवन की इच्छा रखता है and see good days, और अच्छे दिन देखना चाहता है, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। Those अच्छा दिन has come from this passage only. अच्छे दिन जो आने वाले हैं वो इसी वचन से आएगा। Yes, he says, He who will love life and see good days. वो जो अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन की इच्छा रखता है,
You know the biggest troublemaker in us? आप जानते हमारे अंदर जो सबसे बड़ा तकलीफ उत्पन्न करने वाला है, We are going to point that person out today. हम आज उस व्यक्ति को अपने बीच में पकड़ेंगे। ये होना चाहिए. Who is this? ये व्यक्ति कौन है जो संकट उत्पन्न करता है हम सबों के लिए? Your tongue. वो है हम खुद की अपनी जुबान। Unnecessary problem we bring upon ourselves by speaking things. अनावश्यक समस्याएं हम अपने जीवन के ऊपर ले आते हैं By speaking about others. दूसरों के बारे में बोलने के द्वारा, And you do not know the mess. Always it leaks off and it comes back to you. You और know. हमेशा वो बातें बाहर निकल कर घूम के आप ही के पास लौट आती है। And then you get for this thing worked up that how the people have come to know about it. और आप फिर सोचने लगते हैं कि लोगों को ऐसा पता कैसे चला। This tongue is a small member, ये जुबान बाइबल कहती है एक छोटा सा शरीर का अंग है very uncontrollable. जो कि अनियंत्रित चलता है। After we have talked a while, we sit down and think how much wrong we have said. कुछ देर बात करने के बाद यदि बैठकर सोचे, हमें लगता हमने कितना गलत बोला है। To see good days, we need to control our tongue. अच्छे दिन को यदि देखना है तो इस जुबान को नियंत्रित करना है। Amen. Amen. James is very clear. याकूब बहुत स्पष्ट है। Same tongue we bless God and same tongue we curse man. वो कहता उसी जुबान से हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन उसी जुबान से लोगों को श्राप भी देते हैं। And what is happening? और क्या हो रहा है? Our image is being spoiled हमारा जो पहचान है वो खराब होता जा रहा है because of what we have said हमने जो कहा है उन शब्दों के कारण about others. दूसरों के विषय में। See, we are not going to get any marks देखिए हमें कोई अंक नहीं मिलने वाला उसके लिए with God परमेश्वर के साथ। if we know about somebody else. यदि हम किसी दूसरे के बारे में कुछ जान गए उसका अंक नहीं मिलेगा। The God will say, come on, here, I want you to speak out. परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कि तू इधर सामने आ, मैं चाहता हूं कि तू उसके बारे में गलती बताए। I need 2 or 3 witnesses and you are one of them. और मुझको 2-3 गवाह की जरूरत थी, उनमें से तू एक है। Yes, Lord. हाँ प्रभु। No, friends. नहीं दोस्तों, God knows our heart. परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। Our mouth will only speak what is in the heart. और जुबान वही चीजें बोलता है जो दिल में है। And what happens is, और क्या होता है कि if we control ourselves, यदि हम अपने आप को नियंत्रित करें we will get a good name. तो हमें एक अच्छा नाम मिलता है। Amen. आमेन Amen. आमेन। People are choosing money, लोग आज धन को चुनते हैं and so many rich people talk bad about them. और बहुत से धनवान लोगों के बारे में लोग बुरा भी बोलते हैं। And they know that how they got the riches. और वो ऐसे ऐसी बातें करते, अरे हमें पता है उन्होंने धन कैसे कमाया है। Corruption is them. और भ्रष्टाचार वहां है। Whatever it is. चाहे जो भी है, Got riches but spoiled name. वो यदि धन के साथ में यदि नाम बुरा हो जाए, We got to be careful that our name is not getting spoiled. इस बात के लिए हमें खबरदार रहना है कि हमारा नाम लोगों में बुरा ना हो। Guide our heart, guard our heart. अपने हृदय की रखवाली कर, For out of it is the issues of life. क्योंकि उससे जीवन का मूल स्रोत उसी से है। Amen. Amen. Don't allow people to throw trash in your house. लोगों को अनुमति मत दे कि वो अपने अंदर का कूड़ा कचरा तेरे ऊपर डाल दे। You know what I'm meaning to say. आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? Some people will come and gossip about you. कुछ लोग आपके घर आकर बातचीत करते हैं दूसरों के बारे They में, will say so many things. और क्या क्या बात बोलते हैं। Remember, याद if रखें, they are saying that about you, यदि वो about somebody आपके else to किसी you, और के बारे में यदि आपके घर में बोलते हैं, same person will say the same thing about you to some others. तो वही व्यक्ति दूसरे घर जाके आपके विषय में भी कुछ बात वहां बोलेगा। So don't allow them, stop them. इसलिए उनको अनुमति ना दे, उनको रोकें। Okay, you say now, okay, you sit, brother. I am giving them a call and let them come and let talk for in front. और आप कहें कि Amen. ठीक है भाई, आप बैठे, मैं उस व्यक्ति को बुलाता हूं और आपस में आप बात करके चीज ठीक कर I लें, don't want my house to be polluted. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में प्रदूषण हो। Amen. Amen. I don't want my children to be afflicted by what you say. और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इससे प्रभावित हो जो बातें आप कह रहे हैं। Amen. Amen. So keep your house clean. अपने घर को स्वच्छ और साफ रखें, Be bold enough to stand for the और truth. इतना हिम्मत रखें बोलने का, रोकने का। Amen. आमेन। Amen.
So, the name, वो नाम, you know, we are, thank God for the power of the Holy Spirit. प्रभु का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए। We need the power. हमें सामर्थ चाहिए, But we should not forget, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए। the scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. तुम पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, What you will become? और तुम सामर्थ पाके क्या बनोगे? It did not say you will become miracle workers. वो ये नहीं लिखा है कि सामर्थ पाते ही तुम चमत्कार करने वाले सेवक बनोगे। First thing is you become my witnesses. सामर्थ पाते साथ सर्वप्रथम तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Amen. आमीन। Live for Christ. मसीह यीशु के लिए जिए। First in Jerusalem. पहले यरूशलेम में जियो। Jerusalem is the house. यरूशलेम वही घर है। You know a person, you must live with them. आप जानते हैं उस व्यक्ति के साथ ही आपको रहना है। No, to know a person, उस व्यक्ति को जानने के लिए when you live with them, you will know them. जब आप उसके संग रहते हैं, समय बिताते हैं, तब आप उसके बारे में जानते हैं। Because our behavior sometimes outside is different and inside is different. क्योंकि हमारा व्यवहार कभी बाहर अलग होता है, कभी घर में अलग होता है, House your dabang. और घर में शायद अब दबंग बन जाते हैं। Control. नियंत्रण। God. Some people are so proud. और कुछ लोगों को अपने उस व्यवहार पे गर्व है। When I come inside the house is in order. जब मैं घर आता हूँ सब चीजें वो लोग ठीक कर देते हैं। Not your presence, it's the presence of God. नहीं, पवित्र आत्मा की Amen. उपस्थिति होनी चाहिए ठीक करने के लिए। What do you say out of your mouth? हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं? To your wife, to your children, to your husband? पति पत्नी से क्या बोलता है? बच्चों से क्या आप आपस में बोलते हैं? Huh? Very rude words. क्या हम कठोर शब्द उन बच्चों से बोलते हैं? Then we say hallelujah. और उसके बाद फिर हम हालेलुया भी बोलते हैं। Friends, प्रिय दोस्तों, now don't think that somebody told me anything, so I am telling from here. आज मैं जो बोल रहा हूँ कृपया गलत ना समझे कि किसी ने कुछ बताया इसलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। But this is happening. परंतु ये सामान्य तौर पे जगह जगह होता है। Be witness in the house first. हम घर के अंदर पहले गवाह ठहरे हैं। Amen. आमेन। Then outside in Judea और Samaria यहूदा सामरिया में and to the uttermost parts of the world. और जगत की छोर तक। Where is love gone? आज प्रेम कहाँ चला गया है? One pastor rang me up and told me, एक पास्टर ने फोन किया, कहा not from here, यहाँ के नहीं, from far. दूसरे दूर एक जगह से। He says, brother, वो कह रहे we are getting choked. हम तो जैसे कुचले जा रहे हैं। Getting choked in our spiritual life. आत्मिक जीवन में जैसे कुचले जा रहे हैं। We have been threatened all the time हर बार हमें धमकी मिलती है by the organization. संगठन, खुद के संगठन के द्वारा, They will throw you out of the organization. कि हम संस्था से आपको बाहर निकाल देंगे। I told him, मैंने उनसे कहा organization did not call you for ministry. सेवकाई के लिए बुलाहट आपको संगठन से नहीं मिली थी, God has called you into the ministry. परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए पुकार के बुलाया था। What I want to say मैं is, क्या कहना चाह रहा हूँ, early church, they were in such love that they sold things and gave one to one another. आरंभ की कलीसिया इतने प्रेम में थी कि वो अपनी सामग्री को बेच के एक दूसरे की आर्थिक मदद किया करते थे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। The church was one. कलीसिया एक मन की थी। They could not see the other party suffer. वे अपने ही किसी भाई बहन को दुख में देख नहीं पाते थे। Choose to do and live right. अच्छा करने और अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर। Learn to speak. और बोलना सीख। वे अरे कब से सीख गए हैं, बोलना सीख गए। बोलना तो हम कब से सीख गए हैं। You know, you don't have to teach abuse. They learn it somehow. कुछ बच्चे जो गाली बकते आप उनको देखते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता, परंतु वो सीख जाते हैं। So we were in Jabalpur, एक बार जबलपुर में थे, and one African family used to come to our house. एक अफ्रीकी परिवार घर में आया करता था उन दिनों में। He had a small son, और उनका एक छोटा सा बेटा था, लड़का था, and he's playing with other children and he's speaking Hindi, you know. और वो दूसरे
भारतीय बच्चों के साथ खेल रहा और वो हिंदी भी बोल लेता था वो बच्चा, And he's using all slang language. और वो बिल्कुल संसारिक भाषा बोल रहा था We were laughing. और सब लोग हंस रहे थे। So their parents are asking, is he saying something? तो उसके wrong? माता पिता जो कि विदेशी थे वो पूछ रहे थे, कुछ हमारा बेटा कुछ गलत बोल रहा है क्या? He's abusing. वो गाली बक रहा था, लेकिन माता पिता समझते नहीं थे। So they learn somehow. वो बच्चे किसी तरह से सीख जाते हैं। We got to keep them away from this kind of company. हमें ऐसे संगति से भी इन बच्चों को बचा कर रखना है। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, what does the name carry? नाम क्या लेकर चलता है? Your identity. आपकी पहचान। When you take the name, you identify that person. जब आप नाम को लेते हैं तो आप एक व्यक्ति को पहचान करके अलग करते हैं। Maybe 2-3 people might be with the same name, शायद 2-3 लोग उसी नाम के हों, but then you identify with the surname. फिर आप उनके जो उपनाम लेकर या उनका जो सरनेम लेकर आप उनको अलग करते हैं। Number one, पहली चीज, you identify them. आप नाम से किसी के पहचान करते हैं। You and I are identified. मेरे और आपकी भी पहचान होती है। In Antioch, they called them Christians. अंताकिया शहर में दुनिया के लोगों ने मसीह लोगों को मसीही कहा। Amen. Amen. They did not sit down and say, now what should we call ourselves? वहां पर समुदाय के लोग, दुनिया के लोग बैठ के सोचे नहीं, या मसीह लोग बैठ के नहीं सोचे हम लोग अपना नाम क्या रखेंगे। The others saw them. दुनिया के लोगों ने जब इन उद्धार पाए मसीहियों को देखा, These men and women live like Christ. और ये बोला कि ये लोग जो हैं, ये जो यीशु मसीह था उसी के समान ये लोग बात करते वैसे ही रहते हैं। They don't talk like others talk. इनकी भाषा हम लोगों की भाषा के समान नहीं है। They don't behave like others behave. इनका व्यवहार संसार के लोगों के समान भी नहीं है। They are not angry as others are. ये वैसे क्रोधित नहीं होते जैसे हमारे दुनिया में लोग होते हैं। They are not jealous. और ये लोग आपस में जलन भी नहीं करते They हैं। don't live a life of sin. ये लोग पाप का जीवन भी नहीं जीते They हैं। love their God. और ये लोग अपने परमेश्वर से अत्यधिक प्यार करते हैं। They are Christians. ये लोग ईसा मसीह के समान ईसाई हैं। Oh, what a testimony. क्या गवाही। Amen. आमीन। John did no miracle. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने कार्यकाल में एक भी चमत्कार नहीं किया, All what he said about Christ was right. किंतु जो कुछ उसने आमीन। अपने मुंह से यीशु आमीन। के बारे में कहा वो सब सही था। They said, who are you? लोग उससे पूछते थे, तू कौन है? I'm a voice calling in the wilderness. वो कहता था, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। I'm a light. He was a light shining for some time. वो तो कुछ समय इस पृथ्वी पर चमकने वाले एक दिए के समान था। God expects great things from us. परमेश्वर हमसे बड़ी बड़ी चीजों की अपेक्षा रखता है। You know what Jesus said? आप जानते यीशु ने क्या You कहा? are the light of this world. तुम लोग इस जगत के ज्योति हो। Let this little light of mine, प्रभु मेरी ये छोटी सी बत्ती को I'm going to let it shine. मैं उसे चमकने दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. When you will shine, जब आप दुनिया में चमकेंगे, Christ will be glorified. यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। Amen. आमीन। The scripture says, पवित्र शास्त्र में लिखा है, when you do good, जब तुम किसी के लिए भला करो, they will glorify your Father in heaven. वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। When they see your light shining, और वो आपके जीवन में ज्योति को चमकते देखेंगे। your name आपका नाम not only identifies you by who you are, न केवल आपकी पहचान करती है कि आप कौन हैं, your name carries an authority परंतु आपके नाम and में respect. एक अधिकार और एक सम्मान भी जुड़ा हुआ है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Some people retire कुछ लोग सेवा से निवृत्त हो जाते हैं and people say, और लोग कहते हैं he's an honest man. ये बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। Some of our big sportsmen, कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी लोग, there was one Milkha Singh, एक खिलाड़ी sprinter. धावक मिल्खा सिंह थे। Then there was another one who was Makhan Singh.
माखन सिंह नाम के एक और धावक थे। I was reading about him. मैं इनके बारे में पढ़ रहा था। He also brought some medals. उन्होंने भी भारत देश को कुछ पदक दिलाए थे। These are all army fellows, retired. और अब वो सेना से निवृत्त हुए लोग थे। Makan Singh was sick माखन सिंह सिख थे and he was ailing. और उनकी तबीयत खराब थी। No help, कोई सहायता कहीं से नहीं मिल रही थी। no recognition. कोई भी पहचान भी लोग नहीं रहे थे उनको। Only on that day, the medal. केवल जिस दिन पदक पाया था तब सब लोगों ने पहचाना था। And big praise and photograph. बड़ी तारीफ और बड़े बड़े अखबार में चित्र छपे थे। But one thing is there. परंतु एक बात वहाँ है, These men lived honest life. इन लोगों ने बड़ा ईमानदारी का जीवन भी जिया। Amen. आमीन। Good name. एक अच्छा नाम रखा। I remember one principal when we were very small, he was staying next to our door. जब हम बहुत छोटे थे, एक प्रिंसिपल हमारे घर के बगल में रहते थे। I think his name was Mr. Mishra. शायद उनका नाम मिस्टर मिश्रा था। He was so honest. वो इतने ईमानदार व्यक्ति थे। Those days he used to go to cycle to school. उन दिनों में स्कूल साइकिल में ही जाना होता था। Even when he would set his paper, he will not show it to his children. वो जब किसी प्रश्न पत्र को वो बनाते थे, वो अपने बच्चों को भी नहीं बताते थे खुद के घर के कि क्या उसमें लिखा है। That man had a name. इसलिए उनका एक अच्छा नाम था। Leave a good name in your office. अपने ऑफिस में भी एक अच्छा नाम लेकर जिए। Amen. Amen. That person is an honest man, लोग कहें वो व्यक्ति honest woman. ईमानदार पुरुष है या ईमानदार महिला है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। People know that. लोग इस बात को जानते भी हैं। Amen. आमीन। Change of name. नाम का बदलना। We have a liberty to change our name. लोगों के पास में स्वतंत्रता है कि वो अपने नाम को परिवर्तित कर सकते हैं। You can go to the notary office आप नोटरी में जा सकते हैं and get your name changed. और अपने नाम को परिवर्तन की प्रक्रिया कर सकते हैं। Some change their own name. कुछ लोग अपने खुद का नाम बदल देते। रूथ ने First chapter verse 20 says, पहला अध्याय और उसका 20 में लिखा है, it talks about Naomi. वहां पर नवमी के बारे में लिखा है। Naomi means नवमी शब्द का अर्थ है pleasant one, एक joy, आनंद, चाहने योग्य, joy, जॉय, bliss. खुशी। And she and her husband took a journey to another place, Moab. नवमी और उसका पति एक दूर देश मोआब देश में चले गए। When there was bread, they went from Bethlehem. और वो Bethlehem to Moab. मोआब, वे लोग बैतलहम में रहा करते थे, वहां के निवासी थे, वहां से वे मोआब चले गए। House of bread. जो बैतलहम का अर्थ रोटी का घर था। They going to a foreign land. वे लोग उस रोटी के घर को छोड़कर एक पराये अजनबी देश में वास करने दोनों निकल Because पड़े। there was famine here. क्योंकि बैतलहम में अकाल पड़ा था। When you choose a job, जब आप एक नौकरी को चुनते हैं, always see whether you will have good fellowship or not. हमेशा इस बात को देखें कि आपको सही संगति मिल रही वहां अर्थात नहीं। Job is not the first priority. प्राथमिकता नौकरी नहीं है। It looks good there. वहां से अच्छा दिखता है दूर से। Moab is flourishing. मोआब तरक्की करता दिख रहा है। And you know what happened? लेकिन आप जानते क्या हुआ? Tragedy struck Naomi's house. वहां जाते ही नवमी के घर में एक के बाद एक त्रासदी आई। Her husband died. पहले तो उसका खुद का पति का देहांत हो गया। Both sons got married and both of them died. दोनों उसके बेटों का विवाह वहां पर कर दी उसने, लेकिन उसके बाद दोनों बेटे के करके मर गए। Now she heard that God has poured His blessing upon Bethlehem. और इतने सालों बाद उसने सुना कि परमेश्वर ने बैतलहम की फिर से सुधि ली है। If you stick there, God is going to open a door there. Amen. यदि आप Amen. वहां पर बने रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोलता है। First priority to God. पहली प्राथमिकता परमेश्वर को सोचकर। Amen. Amen. Second priority to your job. दूसरी प्राथमिकता आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय।
Now she's empty. अब वो पूरी तरह से खाली हो गई। Telling his daughter-in-laws, you go back home now. अपनी बहुओं से कहती है, अब तुम लोग भी अपने अपने घर लौट जाओ। I go back. मैं भी अपने गृह नगर वापस जाती हूँ। I came full. मैं तो भरपूरी को लेकर मोआब आई थी। Why you came there when you were full? जब आप भरपूर थे तो फिर आप यहाँ क्यों आए थे? And now I return empty. लेकिन अब मैं सब कुछ खोकर लौट रही हूँ। One daughter-in-law said, no, I won't leave you. दोनों बहुओं में से एक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। Your God will be my God. आज से तुम जिस परमेश्वर की उपासना करते हो, Amen. वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर। Amen. Amen. Where you go, I will go. तुम जहां भी जाओगे मैं वहां जाऊंगी। Where you die, I will die. जहां तुम मरोगे, उस बहू ने कहा, वहां मैं मरूंगी। Where you will be buried, I will be buried. जहां पर तुझे गड़ाया जाएगा वहां मैं भी तैयार हूं। Don't tell me that I should not come with you. और मुझसे ये मत बोल कि तेरे साथ नहीं आने के लिए। So Naomi says, नओमी ने अपनी इस बहू से कहा, she changed her name and said, don't call me Naomi. उसने कहा, मुझे अब नओमी मत बोल। Because Naomi means joy and bliss and क्योंकि नओमी का अर्थ Pleasant खुशी, one. आनंद और एक खूबसूरत है। call me Mara. उसने कहा, मुझको मारा कहे। Mara means bitterness. मारा का मतलब दिल में कड़वाहट। Don't change your name. अपने खुद का नाम ऐसा मत बदलिए। Let your name remain. आपके नाम को जैसा है रहने दीजिए। God's blessing is upon it. परमेश्वर की आशीष तेरे नाम के ऊपर होगी। Amen. आमेन। Amen. Amen. Sometimes we curse ourselves. कभी कभी लोग अपने आप को दोषी ठहराते। Sometimes you curse your people also. कभी कभी अपने लोगों को भी आप नाराज होकर उनको भी दोष देते। मर जाता तो ठीक रहता, बोलते कि वो मर जाता तो ठीक रहता। जब मर जाएगा लेकिन जब वो व्यक्ति सच में मर जाता, उठो, लोग रोते, कहते उठो, देखो देखो। अरे जब से तो कर्ज कर रहे हो। Don't do that. ऐसा ना करें। Amen. आमेन। I think I am speaking to someone. मुझे लग रहा है कि शायद मैं किसी से बोल रहा हूँ। You are in a habit of cursing. शायद आपकी आदत बन गई है ऐसे दूसरों के लिए बोलना। Don't curse your people. अपने लोगों को मर जाओ ऐसा नहीं बोलना। Bless them. बदले में प्रभु तुम्हें आशीष दे। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Because what you say happens. क्योंकि आप जो बोलते हैं वैसा होता है। There is lot of in the whole scripture you will find lot of names have been changed. आप पवित्र शास्त्र में बहुत से लोगों के नाम को बदलते हुए नया नाम पाते देखते हैं। There are some names which are changed by man. कुछ नाम मनुष्यों ने ही बदल दिए। And some names are changed by God. कुछ नाम परमेश्वर ने किसी का बदल दिया। You remember that when Jacob was running away, going back to Bethel. आपको याद है जब याकूब भागकर बेतेल को जा टिका। And this time, और इस बार his wife Rachel was having pains for her delivery. और उसकी जो पत्नी राहेल थी वो गर्भवती थी। Genesis 35th chapter. उत्पत्ति 35 में लिखा है। And 18th verse. और 18 आयत में। And when she was bringing forth the child, और ऐसा हुआ कि जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी, she was losing life. She was dying. वो मर गई, वो मरने वाली थी, मरने की कगार में थी। So even as she was delivering the baby, she said, लेकिन उसका प्राण निकलते निकलते उसने क्या कहा? and it came to pass, और ऐसा हुआ as the soul of Rachel was departing, कि वह मर गई और उसके प्राण निकल रहे थे। she called the name of the baby Benoni. उसने उस बेटे का नाम जिसको वो जन्म दे दी, उसने उसका नाम बेनोनी रखा। Because the ladies who were doing the job, क्योंकि जो औरतें वहां पर उसकी मदद कर रही थी, they said, there's a son that is born.
उन्होंने उसको बताया तुझे एक बेटा उत्पन्न हुआ है। So she gave him a name, उसने उसको एक नाम तुरंत मरते मरते एक नाम दिया, Benoni, इसका नाम बेनोनी रखना, son of my sorrow. मेरे शोक का पुत्र। What a name? क्या नाम है? Benoni, बेनोनी, son of my pain, मेरे दुख का पुत्र, मेरे शोक, son of my sorrow. मेरे शोक का मूल पुत्र। But Jacob immediately changed the name. परंतु याकूब ने तुरंत ही उस नाम को पलट दिया। But his father called him Benjamin. परंतु उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा, Son of my right hand. मेरे दाहिने हाथ का बेटा। Hallelujah. Amen. आमेन। That name has to be carried by that child all his life. क्योंकि वो नाम उस पुत्र को जीवन भर लेकर चलना होता। There are others who used to change names. दूसरे भी ऐसे लोग थे जिन्होंने नाम को बदला है। Like when the kings would take their captives, they will change their names over there. जब राजा लोग किसी को पकड़ कर ले जाते थे, उनका नाम बदल देते थे उन कैदियों का, So their identity is lost. ताकि उनकी मूल पहचान गुम हो जाती थी। Shadrach, Meshach and Abednego, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, Daniel, दानियेल, they changed their name. इन चारों का नाम उन बाबुल के लोगों ने बदल दिया। It will sound like the name of the Babylonians. और उनका नाम सुन के ऐसा लगता था नया नाम कि वे भी बाबुल के निवासी हैं। So the devil will also like to change. शैतान भी लोगों का नाम बदलना चाहता है। I think something good happened because some missionaries came and changed their names. और मुझको लगता है कुछ अच्छा हुआ जब मिशनरीज आकर उन्होंने कुछ नाम बदल दिए, Because now you are called Robinson, क्योंकि अब किसी को रॉबिन्सन बोला जाता है, Thomas. किसी को थॉमस बोला जाता है। Thank God for that. प्रभु का धन्यवाद उसके लिए। Amen. You don't need to change it. आप उसे खुद ना बदलें। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, some disciples changed the name कुछ चेलों ने नाम को बदला because of their character. अपने चरित्र, उनके चरित्र के कारण। Joseph, who was one of the apostles, was surnamed Barnabas. और जोसेफ जिसका नाम बरनबास रखा गया, It was given by the apostles प्रेरितों ने ये नाम उसको दिया था because of his nature. उसके स्वभाव को देखकर। Son of consolation. मेल कराने वाला पुत्र। Hallelujah. Amen. आमेन। If you walked into his house, यदि आप बरनबास के घर किसी दिन चले जाएं, there was peace. उसके घर में पूर्ण शांति है। Amen. आमेन। When he came to your house, जब वो आपके घर आएगा, bring peace. वो शांति लेकर आएगा। Paul was a little हड़बड़ी fellow. पौलुस थोड़ा जल्दबाजी वाला आदमी था। Barnabas was cool. बरनबास ठंडे दिमाग वाला। Amen. आमेन। So they changed his name. प्रेरितों ने बरनबास को देखकर उसका नाम बदल दिया। What name is the church giving you and me? कलीसिया मुझको और आपको क्या नाम दे सकती है? Oh, चतुर है. क्या ऐसा नाम तो नहीं? Anyway. Hello. आमेन। There are others name और भी changed. नाम बदले गए हैं। God changed the name of people. परमेश्वर ने लोगों के नाम को बदला है। First time he changed the name of Abram to Abraham. पहली बार परमेश्वर ने अब्राम के नाम को अब्राहम किया। Abram means exalted father. अब्राम का मतलब है उच्च पिता। Abraham means अब्राहम का मतलब है father of many nations. बहुत राष्ट्रों का पिता, जातियों का पिता। Hallelujah. Hallelujah. Just God would change a little bit here and there. परमेश्वर थोड़ा सा तेरे नाम को बदल देता है। When God changes a name, there is the destiny is changed. जब परमेश्वर किसी का नाम बदल देता है तो उसके जीवन का गंतव्य भी बदल जाता है। Amen. When God changes his name, जब परमेश्वर उसका नाम बदलता है, there is always a blessing. वहां पर हमेशा उस नए जगह में आशीष है। Jacob, याकूब, surplanter. वो जो युक्ति करने वाला चालाकी से। You see, that's not the only
interpretation to his name. देखिए उसके नाम का केवल यही धोखा देने वाला यही अनुवाद नहीं है, Another one is एक और है, the one who follows. वह जो पीछे पीछे निकल कर आया। He came behind Esau, no? क्योंकि वो ईसाव अपने जुड़े भाई के पैदा होने के पीछे पीछे उसकी एड़ी पकड़ के आया। So that is also one name. वो भी एक नाम है, याकूब का अर्थ यह भी है। And in the Greek word, और यूनानी भाषा में may God protect. परमेश्वर रक्षा करे, ये है याकूब का अर्थ। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, supplanter is there. वहां पर धोखा देने वाला या चलाक तो है, Always doing, getting advantage of things. हमेशा That is the चीजों way. का लाभ लेता है। That is his name. ऐसा ही उसका नाम था। All this time he is living on the earth, earthly level. और अब तक तो वो संसारिक और पृथ्वी के स्तर में जिंदगी जी रहा था। Money, पैसा, शादी, शादी second शादी, और दूसरी शादी, first शादी, पहला विवाह, धोखा दे दी. धोखा दे दिया। Again he worked 7 years. फिर 7 साल उसने मेहनत किया, Married Rachel, राहेल से विवाह किया, became rich. धनवान हो गया। That's not what God had destined him for. लेकिन परमेश्वर याकूब को इन सब के लिए नहीं बनाया था। Something bigger and greater than what you think you are. तू जो सोचता Amen. है, तू जो है उससे कहीं अधिक बड़ा। Up till now, this is you are doing, and God's blessing upon you. अब तक तू ये करता आया और परमेश्वर की आशीष तेरे काम के ऊपर में रही है। Now he's alone. लेकिन अब याकूब के जीवन में एक समय आया जब वो पूरी तौर से अकेला था। His brother is coming, उसका भाई दूसरी तरफ से आ रहा था, not with the family, परिवार लेकर मुलाकात करने but नहीं, strong men to fight. परंतु अपने साथ कुछ योद्धाओं को तलवार के साथ में लड़ने। He is sending gifts. और याकूब दूसरी तरफ से अपने भाई के लिए इनाम और भेंट भिजवाता है। And the reporters come back and say he is also coming to meet you. और वे लोग जो इनाम लेके गए वो वापस लौट के बोलते, दूसरी तरफ से तेरा भाई भी तुझसे मिलने एक बड़ी भीड़ He knew लेकर आ this रहा है। meeting is not going to be good. याकूब को मालूम था मेरी भाई के साथ मेरी मुलाकात शांति वाली नहीं रहेगी। So he divides the people. वो खतरे को भाप गया और उसने अपने परिवार को अलग अलग किया। And he goes alone, crosses a brook. और वो At अकेले night. ही आगे बढ़ा और रात्रि में एक पानी के एक झरने को पार किया। And he's praying at night. और रात में वो संघर्ष की प्रार्थना करने लगा। I like what Bobby Mathai said. मुझे अच्छा लगता है पास्टर पापी मथाई जो बोलते हैं, Suddenly, एकाएक somebody jumped on him, caught him. कोई उसके ऊपर कूद के उसको पकड़ लिया। Suppose you're praying and somebody catches you like that. मान लीजिए आप प्रार्थना में बैठे हैं, पूरा ध्यान प्रार्थना में, एकाएक कोई आपके ऊपर लपक कर आपको जकड़ ले, छोड़ो। Caught him. उसने जो आया था उसने उसको पकड़ लिया, The angel of God. और वो कोई और नहीं परमेश्वर का दूत था। And he says, what? He says, you bless me. और याकूब ने उससे कहा तू मुझको आशीष दे। He says, I will not let you go till you, Jacob says to him, याकूब उससे बोलता है मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, जब उसने कहा मुझे जाने दे, unless you bless me. कहा जब तक मेरे को आशीष नहीं देगा मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। And the angel asked him, स्वर्गदूत ने याकूब से पूछा what is your name? बता तेरा नाम क्या है? Your name will tell you the story. तेरा नाम तेरी जिंदगी की पूरी कहानी मुझे बता देगी। He says, my name is Jacob. कहता है मेरा नाम याकूब है। And the angel said, स्वर्गदूत ने उससे कहा no more Jacob. नहीं, आज के बाद से याकूब नहीं, Hallelujah. You shall be called Israel. तेरा नाम इज़राइल होगा। Because you fought like a prince. क्योंकि तू एक राजकुमार के समान लड़ा है। You prevailed with man and with God. तू मनुष्यों को भी और Hallelujah. परमेश्वर को भी तूने अपना कर लिया। Hallelujah. उन पर You जीत prevailed गया। with man, you prevailed with God. मनुष्यों पे प्रबल हुआ, परमेश्वर को भी बाध्य कर दिया है। Amen. आमेन।
Israel means इज़राइल शब्द का मतलब है let God prevail. यहोवा परमेश्वर प्रबल हो। Amen. You may not be able to prevail over the situation in your house. हो सकता आप आपके घर की परिस्थिति के ऊपर प्रबल नहीं हो पा रहे। You fought, did everything, but you could not prevail. आपने संघर्ष किया, लड़ाई की, लेकिन आप प्रबल नहीं हो पाए। You put on your arguments and nothing happened. आपने अपने सही तर्क को रखा, लेकिन प्रबल नहीं हो पाए। Nobody understands you. कोई आपको समझता And नहीं। you do not know what am I going to do. और आप जानते नहीं कि मैं क्या करूंगा। Let God prevail. परमेश्वर मेरे जीवन में प्रबल हो। Hallelujah. Hallelujah. You fight like a prince. तू एक राजकुमार के मानिंद लड़ा है। You prevailed with God. परमेश्वर को भी मना डाला। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Your name shall no more be called Jacob but Israel. तेरा नाम आज के बाद याकूब नहीं, इज़राइल होगा। Jesus changed the name of Simon to Peter. यीशु मसीह ने शमौन का नाम पतरस कर दिया। When God changes the name, there is a change in the destiny of that man. जब परमेश्वर किसी का नाम बदलता है तो उस व्यक्ति के दिशा में आशीष प्रभु देता है। Clay. Simon means clay. शिमौन का मतलब है माटी, Peter means stone. पतरस का मतलब है पत्थर। Why didn't Jesus change the name of Andrew? यीशु मसीह ने अंद्रयास का नाम क्यों नहीं बदला? He is the one who brought him. वही तो था जिसने पतरस को लाया था। The meaning of Andrew is the strong one. अंद्रयास का मतलब है वो जो कि बलवान है। Amen. आमेन। Peter looked strong. पतरस बलवान दिखता तो था, He is soft in heart. लेकिन वो माटी Amen. के समान नरम Jesus था। changed his name. यीशु ने उसका नाम बदल दिया। Amen. आमेन। You read in the Bible, आप बाइबल में पढ़ते हैं, I will give you a new name. बाइबल में लिखा है परमेश्वर कहता मैं तुझको एक नया नाम दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Isaiah 62nd chapter, यशाया उसका 62 अध्याय खोलिए 2nd verse. और उसकी दूसरी आयत। And the Gentiles shall see the righteousness, and all the kings the glory, and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। Hallelujah. Which God will give. जो यहोवा देगा। 2nd chapter of Revelation 17th verse. प्रकाशित वाक्य 2:17। He that hath ear to hear, let him hear what the Spirit has to the churches. And to him that overcometh I will give to eat for the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, save he that receiveth it. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। Hallelujah. Hallelujah. The name of which God gives has a blessing. वो नाम जो परमेश्वर देता है उसमें आशीष है, Some secret blessing. कुछ गुप्त आशीष है। Because you only will know it. क्योंकि केवल आप जो पाने वाले वही जानेंगे, Others will not. और दूसरे उसको नहीं जानेंगे। Amen. आमेन। A new name. एक नया नाम। Your name might be spoiled. हो सकता है आपका नाम खराब हो गया ऐसे आपको लगता है। Saul of Tarsus तरशीश का शाऊल became Paul the apostle. वो पौलुस प्रेरित में तब्दील हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Persecutor. सताने वाला शाऊल Now he is full of the love of God. अब वो परमेश्वर के प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति बन गया। But I'll tell you something. परंतु मैं आपसे आज कुछ कहना चाह रहा हूँ। God gives name, परमेश्वर लोगों को नाम देता है, and he gives names even before they are born. और वो उनको उनके जन्म होने के पहले ही एक नाम देता है। The angel said to Zacharias, स्वर्गदूत ने जकरिया याजक से कहा, your wife will conceive. सुन तेरी पत्नी गर्भवती होगी, Call his name John. उसका नाम उस लड़के का यूहन्ना रखना। And the angel goes to Mary. और स्वर्गदूत मरियम के पास गया You shall conceive और कहा तू
गर्भ धारण करेगी, bear a child, एक बालक को जन्म देगी, call his name Jesus. उसका नाम यीशु रखना। Hallelujah. हालेलुया। He shall save his people from their sin. वो बालक अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। Amen. आमीन। The name of Jesus changed the destiny of man. यीशु मसीह का ये नाम ने आज मनुष्य जाति की दिशा को बदल दिया है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। There is salvation in no other name उद्धार और दूसरे किसी नाम में इस दुनिया में नहीं दिया गया, but in the name of Jesus. परंतु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। Neither is there salvation in any other name, और दूसरे किसी नाम में उद्धार नहीं, for there is none other name given under heaven among men. क्योंकि लिखा है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों को उद्धार पाने के लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, By which man shall be saved. जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष या उद्धार को पाए। Many names are there. बहुत से नाम अच्छे इस दुनिया में हैं, Many names of gods. बहुत परमेश्वरों और देवताओं के नाम इस दुनिया में हैं, But I want to tell you something. परंतु आज सुबह मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं In the name of Jesus there is salvation. कि यीशु नाम के अंदर ही उद्धार मिलता Hallelujah. है। You can call on him one time आप उस नाम को एक बार भी सच्चाई से पुकार, and one time things will happen for you. और एक बार जो चीज तेरे लिए हो जाएगी। Hallelujah. आमीन। Amen. Amen. The name of Jesus. यीशु का नाम। There is healing in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में बीमारियों से चंगाई है। Peter and John went to pray. पत्रस और यूहन्ना प्रार्थना करने आराधनालय गए। I love that chapter मुझे वो अध्याय पसंद है, because many times the name of Jesus comes in. क्योंकि वहां पर यीशु मसीह का नाम बार बार आता है। And one beggar man who was sitting there, everybody knew him. और वहां पर एक भिखारी आदमी बैठा था और सब लोग उसको जानते थे। And his job was to ask money from all those who go inside. और इस भीख मांगने वाले आदमी का काम, लंगड़े आदमी का काम जाने वालों से भीख मांगना। And he says, give me something. पत्रस और यूहन्ना को देखकर बोलता है मुझको भी कुछ दे दो। Peter and John says, silver and gold I have none. पत्रस और यूहन्ना ने मुड़कर देखकर कहा सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं। Maybe today the church has got all the silver and gold. शायद आज कलीसिया के पास, चर्च के पास सोना है, चांदी है। They can give silver and gold. वो सोना और चांदी लोगों को देने उनके पास शायद है। But that's such as I have. लेकिन पत्रस ने कहा परंतु जो मेरे पास है, Look at us. हमारी ओर देख। In the name of Jesus of Nazareth. मैं तुझको यीशु मसीह नासरी के नाम से Rise up बोलता हूं, उठ और चल फिर and walk. और चलने लग जा। Hallelujah. Hallelujah. Miracle happened. चमत्कार उस लंगड़े के साथ हुआ। Everybody began to run here and there. सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, Because the lame man was walking, leaping, jumping, doing क्योंकि all exercise. ये आदमी जो लंगड़ा था उछल रहा, कूद रहा, दौड़ रहा, भाग रहा था। And he was holding Peter and John. और वो पतरस और यूहन्ना से लिपट गया। The service was all disturbed. और अब मंदिर की आराधना में भी वहां पर गड़बड़ी आ गई, There is some Olympics happening. क्योंकि यहाँ पर उछल कूद हो रहा था। Hop, step and jump. और कूद रहा, उछल रहा और दौड़ रहा। And they all came. ये सब भीड़ वहां गए, They knew this man. क्योंकि सारे भीड़ के लोग इस लंगड़े को जानते। This morning only I put something there. आज ही सुबह मैंने इसको दान दिया है, He talked to me. इसने मेरे से भी मांगा था। But look at him. लेकिन देखो तो Something has happened. इसको क्या हो गया है। And they were looking very earnestly at Peter and और John. वे पतरस और यूहन्ना की तरफ ताकने लगे। And Peter and John said, पतरस और यूहन्ना ने उन लोगों से कहा don't look at us as if we have done this job. हमारी ओर ऐसे मत देखो जैसे हमने कुछ किया है, Not by our holiness, हमारी जैसे हमारी पवित्र भक्ति से, nor by our power, हमारी सामर्थ्य नहीं, but by the name of Jesus of Nazareth. परंतु ये लंगड़ा यीशु के नाम से चलने लगा है। Is made perfectly whole. वो पूरी तरह से सिद्ध
चंगा हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, we don't just want healing. हमको केवल शरीर की चंगाई नहीं We चाहिए, want the master to say, हम चाहते हैं कि स्वामी ये बोले, you are made whole. तू चंगा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Go in peace. शांति से लौट जा। Amen. Amen. There's a lot of confusion. वहां पर बहुत गड़बड़ी हो गई। Peter preaching. पतरस वहां भीड़ में खड़े प्रचार कर रहा है, There is no other name given under heaven बोल रहा है, सुनो, स्वर्ग के नीचे हम लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम उद्धार का नहीं है whereby you shall be saved. जिसके द्वारा तुम लोग उद्धार पा सको। God wants to turn you away from your sin. परमेश्वर तुम्हारे पापों से तुम्हें मोड़ना चाहता है। God wants to forgive you. परमेश्वर तुम्हें माफ करना चाहता है। God wants to heal you. परमेश्वर तुम्हें चंगा करना चाहता है। And the people believed. और लोगों ने विश्वास किया। Hallelujah. आमीन। But the Pharisees council, they called him फरीसियों ने मीटिंग की, इनको बुलाया and they said, come here. और कहा, आप लोग इधर आओ। How did this happen? ये कैसा हो गया? And they told them. उन्होंने उनको बताया। And they said, उन्होंने कहा, consulted among themselves. आपस में बातचीत मशवरा किया और बोला, Notable miracle has happened. We can't do anything. एक वाकई में एक जबरदस्त चमत्कार तो हुआ है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। We'll threaten them. एक काम करते हैं, इन दोनों को डराते हैं। He said, come here. उन्होंने दोनों को बुलाया, Okay, we leave you, हम अभी आपको छोड़ रहे हैं, but don't speak in this name. लेकिन इस यीशु का नाम जो प्रचार करते उसका प्रचार मत करो। They knew उनको मालूम था there is power in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। This is just not an ordinary name. ये एक सामान्य नाम नहीं है, Name given by God. ये नाम तो परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया था। Allah Baba, Sir, Allah हालेलुया। Baba. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। The name has got salvation. उस नाम में ही उद्धार है, The name has got healing. उस नाम में ही चंगाई है, In His name demons run. उस नाम से दुष्ट आत्मा घबरा के भागती है, In His name great signs and wonders are done. उस नाम में बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। This name has authority. इस नाम में बड़ा अधिकार है। Amen. आमीन। Devil knows it. शैतान भी इस नाम को जानता है He trembles और कांपता है at the name of Jesus. यीशु का नाम सुनते ही। Majesty. ओ वो महिमा में विराजमान। Hallelujah. हालेलुया। Worship His majesty. उसके नाम को ऊंचा उठाओ, Highly exalted one. ऊंचे पर जो विराजमान है। Devil knows. शैतान भी जानता है, The Most High. जो सर्वशक्तिमान है, With this name, इस नाम से we can enter into the Holy of Holies. हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। You take the name, the door opens. आप उस नाम को लेते साथ ही प्रार्थना का द्वार खुल You जाता walk है। into the Father's presence. पिता की हुजूरी में आप जाके खड़े हो सकते हैं, Not fear and trembling, डरते और कांपते नहीं, but as a friend would talk to a friend. परंतु एक मित्र जैसा अपने मित्र से बात करता वैसा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Such a wonderful Jesus. ऐसा अद्भुत हमारा यीशु है। Jesus said to His यीशु disciples, अपने चेलों से यीशु ने कहा, I don't call you servants, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, call you friend. मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। But Tivai used to say always. और बटुक भाई हमेशा बोलते थे, Some people asked him, why don't you say Sri Jesus? और उन्होंने उनसे किसी ने बोला, आप अपने यीशु का नाम लेते हो तो श्री यीशु मसीह क्यों नहीं बोलते? And he would say, तो वो बटुक भाई उत्तर देते थे, दोस्त को कोई श्री बोलता है क्या? अपने ही दोस्त को कोई श्री बोलता है क्या? Jesus. यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Your brother, your friend, आपका भाई है वो, आपका मित्र है वो, your savior. आपका उद्धार करता है वो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। We have access to the Father पिता के पास पहुंचने का पहुंच है हमारे by the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, pray in my name. यीशु ने कहा, मेरे नाम में पिता से प्रार्थना करना। Amen. आमीन। A door will be open. तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। There is forgiveness in His name. उसके नाम में क्षमा है।
the gospel of forgiveness क्षमा का सुसमाचार है is by the name of Jesus. वो यीशु मसीह के नाम में है। There is victory in his name यीशु के नाम में जय है over death, मौत के ऊपर, over Satan, शैतान के ऊपर, over grave. कब्र के ऊपर। Jesus is Lord. यीशु मसीह ही प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And all these names have got a title attached. और इस सब नामों के साथ में एक शीर्षक जुड़ा हुआ है। In some names it is written किसी नाम में लिखा रहता Apostle Paul, प्रेरित पौलुस, Apostle Peter. प्रेरित पतरस। We have our names there written Doctor so and so, लोगों के नाम के सामने डॉक्टर फलाना, Professor. प्रोफेसर फलाना। Jesus' name, यीशु के नाम में King of Kings and the Lord of Lords. राजाओं का राजा, Hallelujah. प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, Amen. आमेन। Such a mighty name ऐसा सामर्थी नाम which God has given. जो नाम परमेश्वर ने उसे दिया। Philippians फिलिप्पी की किताब में 2nd chapter, दूसरा अध्याय reading verses 9 to 11. That 9 is, से 11 आयत। Philippians 2nd chapter 9 to 11. फिलिपियों 2:9 से 11। Wherefore God hath highly exalted him, given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of the things in heaven and things in earth and things under the earth, and every tongue shall confess Jesus is Lord, to the glory of the Father. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो पृथ्वी में और स्वर्ग पर, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God has given him a name परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया which is above all names. जो सब नामों में श्रेष्ठ है, In heaven स्वर्ग में and on the earth, और पृथ्वी पर under the earth. और पृथ्वी के नीचे, That at his name कि वे सब यीशु के नाम पर every knee shall bow, हर घुटना टिके, every tongue confess हर एक जीव अंगीकार कर ले Jesus Christ is Lord. कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Amen. आमेन। There's a name above all other, wonderful to hear, bringing hope and cheer. It is the lovely name, the name of Jesus. Reason to proclaim, what a lovely name.